شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا سوچئے، صرف 3 دن اور آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، صرف 3 دن، اور آپ کے گھر میں دولت ہی دولت آ سکتی ہے، صرف 3 دن، اور بیماریوں سے شفا مل سکتی ہے، صرف 3 دن، اور کاروبار میں ایسی برکت ہو سکتی ہے کہ آپ خود حیران رہ جائیں۔ یہ کوئی عام عمل نہیں، یہ ہے سورۃ الکوثر کا 3 دن کا وظیفہ۔ محترم ناظرین، یہ عمل بہت خاص ہے جس کے بڑے فائدے ہیں۔ پہلا، گھر میں دولت اور برکت آتی ہے۔ دوسرا، بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ تیسرا، کاروبار میں زبردست ترقی ہوتی ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ اگر گھر کا ایک بھی شخص یہ عمل کر لے تو پورے گھر کی قسمت بدل سکتی ہے۔ صرف 3 دن کا عمل اور اتنے بڑے فائدے، اس لیے اسے ضرور کریں۔ اس میں ایک خاص دعا بھی ہے جسے پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہے اور اللہ بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب سب سے پہلے سورۃ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بلا شبہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کی تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، یقیناً تمہارا دشمن ہی بے نام نشان ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک لمحے کے لیے کیفیت طاری ہوئی، پھر آپ مسکرائے اور فرمایا ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے پوری سورت الکوثر کی تلاوت کی اور فرمایا، جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ جنت کی ایک نہر ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کی ہے، جس پر میری امت قیامت کے دن آئے گی۔ اس کے برتن آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں گے، اس کی مٹی خالص مشک ہوگی اور اس کے کنکر بھی موتی ہوں گے۔ ناظرین، یہ ہے اس سورت کی فضیلت۔ اب عمل کی ترتیب سمجھ لیجئے، بہت غور سے سنیے۔ سب سے پہلے درود پاک، صرف 7 مرتبہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد یہ عمل شروع ہوتا ہے۔ ناظرین، جو شخص اپنی جیب، اپنے گھر کو دولت سے بھرنا چاہتا ہے، ہمیشہ کے لیے خوشحالی چاہتا ہے، تو آج ہی یہ عمل کر لے۔ یہ 3 دن کا وظیفہ ہے، لیکن یہ 3 دن بہت خاص ہے۔ پہلا پیر کا دن، دوسرا جمعہ رات، تیسرا جمعہ کا دن۔ ان دنوں میں اگر یہ عمل کیا جائے تو اس کی برکتیں بہت جلدی سامنے آتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، جس دن بھی شروع کرے، لگاتار 3 دن کرنا ہے۔ اگر پیر سے شروع کرے تو پیر، منگل، بدھ۔ اگر جمعہ رات سے شروع کرے تو جمعہ رات، جمعہ، ہفتہ، انشاء اللہ جو بھی دعا مانگی جائے گی اللہ تعالی فوراً قبول فرمائے گا۔ تو ناظرین، یہ عمل ایک ایسا راج ہے جو اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے، ایسا راج جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ یقین جانیے، اس سے پہلے آپ نے ایسا عمل کبھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ 100% گارنٹی والا عمل ہے، اور میں یہ بات پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جو بھی اس عمل کو کرتا ہے وہ بہت جلد مالا مال ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ عمل کبھی ضائع نہیں جاتا۔ یہ ایسا عمل ہے جس کا اثر فوراً ظاہر ہوتا ہے، اس کی تاثیر فوراً ملتی ہے، اور اس کی برکات فوراً نصیب ہوتی ہے۔ اب سب سے پہلی بات، جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد اس عمل کے دوران کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کسی سے گفتگو، نہ کسی سے کلام، مکمل خاموشی کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ ناظرین، دوسری اہم بات، 1 گلاس پانی اپنے پاس ضرور رکھنا ہے۔ یہ پانی شفا کے لیے ہے۔ گھر میں کوئی بھی بیماری ہو، چاہے دائمی ہو یا عارضی، چاہے جسمانی ہو یا ذہنی، ڈپریشن ہو، پریشانی ہو یا کوئی لاعلاج مرض، یقین جانیے اس عمل کی برکت سے ہر قسم کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اگر کاروبار نہیں چل رہا، رکاوٹیں آ رہی ہیں، بار بار نقصان ہو رہا ہے، تو یہ عمل کر کے دیکھیے، کاروبار فوراً عروج پر چلا جائے گا۔ دوستو، اب ذرا غور سے سمجھیے،
آپ बावजूद हो किबला की जानिब मुंह करके बैठे हो और दरूद पाक पढ़ चुके हो। अब इस अमल की एक एक बात को गौर से सुनिए, वीडियो को हरगिज स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर कोई एक बात भी मिस हो गई तो फिर अमल मुकम्मल नहीं होगा। जैसे चाबी का एक दांत टूट जाए तो वो ताला नहीं खोलती, इसी तरह अगर अमल का एक हिस्सा भी रह गया तो नतीजा नहीं मिलेगा। फिर ये मत कहना कि फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये वो अमल है जिससे कभी किसी को नुकसान नहीं हुआ, बल्कि हमेशा फायदा ही फायदा हुआ है। लोग इस अमल को तलाश करते हैं और जो एक बार कर लेता है वो बार बार इजाजत मांगता है कि मुझे दोबारा ये अमल करने का मौका मिले, क्योंकि ये अमल ऐसा है कि जेब कभी खाली नहीं रहती और घर से दौलत कभी खत्म नहीं होती। तो नाजरीन, जरूर इसको करके देखिए, इंशाअल्लाह जिंदगी आसान हो जाएगी। अब दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने पढ़ना है या वहाबू या वहाबू, ये अल्लाह ताला का एक इस्म ए मुबारक है जिसका मतलब है बहुत ज्यादा अता करने वाला, यानी ऐसी अता जिसमें कोई गरज ना हो, बिना किसी मुआवजे के, जिसे चाहे जितना चाहे अता फरमा दे। अल्लाह ताला की जात वहाब है, वो अपनी मखलूक को इस अंदाज में देता है कि उसका कोई मुकाबला नहीं, उसके खजाने में कभी कमी नहीं आती। तो नाजरीन, आज उसी दर से खजाना हासिल कर लीजिए। जो शख्स अल्लाह को इस सिफत से पुकारता है, अल्लाह उसे बिना मांगे भी अता फरमा देता है। और आज आपने 3 चीजें मांगनी है जिनका जिक्र शुरू में हो चुका है। ये तीनों चीजें इसी एक अमल से हासिल हो जाएंगी। और अगर छोटे छोटे फायदे बयान करने लगूं तो आप हैरान रह जाएंगे। रिजक के दरवाजे खुल जाते हैं, अल्लाह का फजल और उसकी रहमत बरसने लगती। तो आपने इस इस्म ए पाक को सिर्फ 12 मर्तबा पढ़ना है। उसके बाद दूसरा इस्म ए पाक या रज़्ज़ाक को, जिसका मतलब है रिजक देने वाला, बहुत ज्यादा देने वाला। ये वो इस्म है जिसे पढ़ने वाले माला माल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ भी ज्यादा तादाद नहीं, सिर्फ थोड़ी सी तादाद में पढ़ना है। जब ये तमाम अज़कार एक साथ पढ़े जाते हैं तो इनकी तासीर कई गुना बढ़ जाती है। अगर आपके पास कोई जरिया आमदन नहीं तो जरिया भी बन जाता है, चाहे आप अमीर हो या गरीब, फकीर हो या तंगदस्त, अल्लाह सब पर करम फरमाता है और सबको माला माल कर देता है। जो शख्स गनी होना चाहता है, दौलत हासिल करना चाहता है, वो ये अमल करके देखे, यकीन जानिए अपनी जगह से उठने से पहले अल्लाह उसे नवाज देता है। अगर कोई रुकावट है, कारोबारी मसाइल, शादी के मसाइल, रिश्तों के मसाइल, घर की नाफरमानियां या कर्ज का बोझ, तो ये अमल कीजिए। अल्लाह गैबी मदद फरमाता है और कर्ज अदा होने के असबाब पैदा हो जाते हैं। अगर आप गैबी मदद देखना चाहते हैं तो ये अमल जरूर कीजिए। नाजरीन, ये हर मकसद के लिए है और वो 3 बड़े फायदे, दौलत, कारोबार की बरकत और शिफा, ये सब आपको इसी अमल से मिलेंगे। अब एक गिलास पानी जो आपने पास रखा है उसे उस शख्स को पिलाए जो बीमार है या परेशान हाल है। अगर खुद आप बीमार हैं, सर दर्द, मिदा, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द या कोई भी बीमारी, अल्लाह के फजल से इस पानी के जरिए शिफा नसीब होगी, क्योंकि इसमें आपको सूरह कौसर भी पढ़नी है। अब मैं सूरह कौसर की बात करता हूं, लेकिन सबसे पहले जो इस्म ए पाक मैंने आपको बताया था, यानी या रज्जाकू, उसके कमालात देखें जब आप इसे पढ़ेंगे। इसकी बरकत से रोजी के सिलसिले में नई नई राहें खुलती हैं, नई जगहों से रिजक के असबाब पैदा होते हैं। ये अमल रिजक की परेशानियों से निजात देता है और इंसान के लिए मालदारी और इज्जत के रास्ते खोलता है। जो लोग रोजी में बरकत और कामयाबी चाहते हैं वो ये अमल करें, अल्लाह का फजल जरूर देखेंगे। जो शख्स खास दुआ में शामिल होना चाहता है वो एक बार दुरूद पाक पढ़कर उसका सवाब बख्श दे, इंशाअल्लाह उसे दुआओं में याद रखा जाएगा, क्योंकि दुआ से तकदीर बदल जाती। ये अमल हर कोई कर सकता है, अमीर गरीब, मर्द औरत, बच्चे बुजुर्ग, बस नापाक हालत में औरतें न करें। इसके लिए कोई खास दिन या वक्त की पाबंदी नहीं, लेकिन फज्र या ईशा के बाद करना बेहतर है।
یا रज़्ज़ाक़ू का वजीफा उंगलियों या तस्बीह पर पढ़ सकते हैं। कोशिश करें कि तन्हाई में सुकून और खशू के साथ पढ़ें। 23 बार या रज़्ज़ाक़ू पढ़े, फिर सूरह कौसर पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैना कल कौसर। फिर ये दुआ 3 बार पढ़े। ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान शाफी अल काफी। तरतीब याद रखे, या वहाबू या रज़्ज़ाक़ू सूरह कौसर दुआ। इसमें कोई आगे पीछे या कमी बेशी ना करे और बीच में किसी से बात ना करे। अमल के बाद वहीं बैठकर दुआ करे। अगर रात को करे तो वुजू के साथ सो जाएं, सुबह मुकद्दर चमक उठेगा। अगर सुबह करें तो पूरा दिन कामयाबी मिलेगी। अमल के बाद सामने रखा पानी का गिलास ले, उस पर दम करे और 3 घूंट में पी ले, हर बार बिस्मिल्लाह पढ़कर। अगर घर में ज्यादा लोग हैं तो उसी पानी को बढ़ाकर सबके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घर से बाहर किसी को न दें। अब सूरह कौसर का तरीका थोड़ा खास है, इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। इसे सूरत ए शिफा भी कहा जाता है, जो रोशनी और नूर की तरह इंसान की जिंदगी को चमका देती है। कभी इसे ग्रहण भी लग जाता है। दिन भर में ये 3 हालात बदलता है, सुबह और शाम हल्का और दोपहर में तेज। लेकिन कुरान पाक की ये सूरत सूरह कौसर इतनी रोशन है कि पूरी दुनिया को चमका देती है, पूरे घर को रोशन कर देती है। जो भी इसे पढ़ता है वो खुद भी चमक जाता है और उसकी नस्लें भी इसकी बरकत से रोशन हो जाती हैं। आज बहुत से लोग अपनी बेइल्मी और जहालत की वजह से कुरान से दूर हैं, जबकि कुरान में शिफा, रिज़्क़, दौलत और इज्जत सब कुछ मौजूद है। मैं चाहता हूं कि कोई भी महरूम न रहे। जो ये अमल करेगा इंशाअल्लाह कामयाब होगा, लेकिन खुश नसीब ही इसे पूरा कर पाते हैं। तरीका ये है कि सूरह कौसर हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ें, क्योंकि बिस्मिल्लाह से शुरू किया गया काम कभी अधूरा नहीं रहता। ये अमल बहुत असरदार है और लोगों को इससे शिफा और राहत मिली है। सूरह कौसर को सूरत ए शिफा भी कहा जाता है, जो रिज़्क़ और बरकत में इजाफा करती है। एक वाक़ये से भी पता चलता है कि बिस्मिल्लाह में बड़ी बरकत है। ये इंसान को बीमारियों और आफतों से बचाने का जरिया बनती है। अगर दुआ कबूल न हो रही हो तो सूरह कौसर पढ़कर दुआ करे, इंशाअल्लाह कबूल होगी। कुरान हर इंसान के लिए है, बीमार के लिए शिफा, गरीब के लिए सहारा, कमजोर के लिए ताकत, गुमराह के लिए हिदायत। आज भी इतने सालों बाद कुरान की बरकत वैसी ही है। जब इंसान हर तरफ से मायूस हो जाता है और कुरान की तरफ आता है तो अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। अब अमल का तरीका, सूरह कौसर 113 बार पढ़ें, हर बार बिस्मिल्लाह के साथ, फिर दुआ 3 बार पढ़ें, आखिर में दरूद पाक पढ़ें, दुआ मांगे, पानी पर दम करके पी ले, इंशाअल्लाह अल्लाह अपने फजल से अता फरमाएगा। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी सुनने और बताने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन।